Hello students, in previous video we have discussed about the effects of water pollution, that how water pollution has many harmful effects. So we have discussed that poisonous chemicals from factories kill marine animals, industrial and agricultural wastes increase the growth of microorganisms in water. This can reduce the supply of oxygen for the aquatic animals, and oil spills form a cover on the surface of earth water. This cuts off the supply of oxygen to the animals living underwater. And we have discussed some more effects, that is, aquatic plants and animals get infected by polluted water, and when other animals eat these infected animals and plants, they also become sick. So कैसे aquatic animals infect होते हैं polluted water से, and जब वही infected animals को दूसरे animals eat करते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, infected हो जाते हैं. So they also become sick. And some people use river and pond water for drinking, and drinking polluted water may cause diseases like typhoid, diarrhea, cholera, and jaundice. So river water is not always clean. So वो क्या होता है, उसको पीने से ये बीमारियां लग सकती है. And when polluted water is used for irrigation, the fertility of soil gets reduced and crops can get damaged. सो पॉल्यूटेड वाटर को जब हम इरिगेशन के लिए यूज करेंगे, क्रॉप्स में डालेंगे, अपनी फील्ड्स में डालेंगे, देन व्हाट विल हैपन, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस्ड. जो फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो भी डैमेज हो सकती है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस एंड लर्न अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट water pollution, because many human activities results the water pollution. So that is our responsibility to prevent water pollution, and we are the one who can prevent water pollution. So we have learnt about the different activities that can cause water pollution. Some steps that may be taken to check water pollution are suggested below. So first one is, wastes from factories and powerhouses should not be allowed to flow into rivers directly. So जो waste हमारे फैक्ट्रीज से और पावर हाउसेस से निकलता है, उसको हमें डायरेक्टली रिवर्स में फ्लो नहीं करने देना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड, सबसे पहले हम उस वेस्ट को ट्रीट करें, उसको क्लीन करें, जो उसमें हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको सेपरेट करें, देन ओनली जो वाटर, जो क्लीन वाटर है वही रिवर में जाने दें. सो इस टाइप के हम लोगों को प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि फैक्ट्रीज से जो भी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं उनको हम सेपरेट कर सकें वाटर से. सिमिलरली पावर हाउसेस का जो वेस्ट है उसको भी हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि जो वो है, जो वेस्ट है उसको रीयूज कर सके या उसको कहीं और डंप कर सके, सो दैट इट विल नॉट फ्लो इनटू द रिवर्स डायरेक्टली. नेक्स्ट इज पाइप्स कैरिंग सीवेज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर. so दिस वी कैन डू, कि जो हमारे पाइप्स हैं जिससे कि सीवेज को जाता है, उसको हम उन पाइप से दूर रखें जिससे कि वाटर, जो पाइप्स वाटर कैरी करते हैं जिसमें से वाटर जाता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, समटाइम्स अगर पाइप्स क्रैक हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजन, वो जो वाटर है और जो सीवेज है वो आपस में मिक्स हो जाता है, जिससे जो वाटर ड्रिंकिंग वाटर पाइप कैरी करता है उसमें भी गंदगी चली जाती है. And you know that if we drink unclean water or dirty water, what will happen? It may cause diseases, very harmful diseases. Now, water from drains or sewage should not be allowed to enter into wells or rivers. And जो
वाटर है ड्रेन्स का और सीवेज का, वो भी वेल्स में और रिवर्स में हमें एंटर नहीं करने देना चाहिए. नेक्स्ट, पीपल शुड नॉट वॉश क्लोथ्स or use soap if they bath in river. So first of all, the people should not wash clothes in the river, and they should not use soaps if they bath. अगर वो बाथ भी कर रहे हैं रिवर्स में, they should not use soap, because soap से जो फोम निकलता है जो वो वाटर को पोल्यूट करता है. It is very harmful for the aquatic animals and plants. So we should not use soap if we bath in the rivers. और क्लोथ तो वॉश नहीं करने चाहिए रिवर के अंदर, बिकॉज क्लोथ वॉश करते हुए तो वी यूज डिटर्जेंट एंड सोप, और वो फिर अगेन वही सोप वाला वाटर जो है वो रिवर्स में चला जाता है. So we can take water from the river and wash the clothes away from the river. Next is the use of chemical fertilizers should be minimized. Now you know that nowadays farmers use chemical fertilizers to increase their crops production, but we should use और मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. हमें उन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना चाहिए, बिकॉज वी हैव लर्नड दैट दीज फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स आर गोज इनटू द रिवर्स और पॉन्ड्स बाय रेन वाटर, बिकॉज रेन जब होती है तो यही केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है रेन वाटर में मिक्स होके कहाँ चले जाते हैं, रिवर्स में और पॉन्ड्स लेक्स में. So we should minimize it. So what we can do? Instead, natural manure should be used. So इसकी जगह पर हम natural manure use कर सकते हैं, and that is not harmful for anyone. और इससे हमारी जो सॉइल है वो भी अच्छी रहती है, और जो हमारी क्रॉप्स है वो भी अच्छे से ग्रो करती है. सो नेचुरल मैन्योर हमें यूज करना चाहिए, फार्मर्स को यूज करना चाहिए. दे शुड नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर, एंड द रेगुलर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. धीरे धीरे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की उसको भी असर पड़ता है लॉन्ग टर्म, अगर हम यूज करते हैं बहुत टाइम तक. सो नेचुरल मैन्योर इज बेटर ऑप्शन, और इससे किसी को भी हार्म नहीं होता, नॉट द ह्यूमंस, और जो इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होता है. सो ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, and it is therefore the responsibility of every citizen to keep our surroundings clean and disease free. So it is not only the responsibility of any one person, it is the responsibility of each and every person, so that because जो वाटर पोल्यूशन से उसका इफेक्ट सबको पड़ रहा है, किसी एक को नहीं पड़ रहा है, नॉट ओनली द एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स को नहीं पड़ रहा है, ये सबको पड़ रहा है, ह्यूमंस को भी पड़ रहा है, बिकॉज वी ऑल्सो ईट द एक्वेटिक एनिमल्स. सी फूड्स हम खाते हैं, हमको भी पड़ता है, एंड वी मस्ट केयर एंड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन एंड डिजीज फ्री. सो वी हैव completed this lesson. So in next video we will discuss the exercise and question answers of this lesson. Thank you.